Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Catalydia practice series. Let's start with today's set. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this. Let's try to understand this and let's try to solve this. So there are 21 employees working in a division, out of which 10 are special skilled employees. So there are some special employees. What is that number? 10. And the remaining are regular skilled employees, REs we call them, and that would be 21 minus 10, that is 11 employees. Perfect. During the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month, right? So we are talking about the next 5 months, and every month we have to complete 5 months, right? Every month we have to complete 5 projects, right? So 5 into 5, 25 projects are there. Out of the 25 projects, 5 projects are challenging, while the remaining ones are standard projects. Okay. Each of the challenging projects has to be completed in different months. Every month, 5 teams T1, T2, T3, T4, T5 work on one project each. T1, T2, T3, T4, T5 are allotted the challenging product in the first, second, third, fourth, and fifth months respectively. The team assigned the challenging project has one more employee than the rest. Now there are a lot of information in this. पहला तो जैसे ये last part इसने बोला, every month there will be what, there will be 25 projects. उसमें ये जो relation है, there will be a team T1, T2, T3, T4, T5. Obviously in the first month T1 will be assigned the challenging project, and T2, T3, T4, T5 will be assigned the standard projects. Right now, with respect to the number of members in the challenging project, it says the team assigned the challenging project has one more employees than the rest. So जो भी हमारा challenging होगा और बाकी जो हमारे 4 standard projects होंगे, बिकॉज 5 प्रोजेक्ट्स है, 5 हमारे टीम्स है, सो जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा उसमें हमारा वन मोर देन द रेस्ट, तो बाकी सबसे, नॉट कंबाइन टोटल, इंडिविजुअली सबसे एक ज्यादा है. सो ये कब पॉसिबल है? सारे हमारे बराबर होंगे और ये वाला इनके इंडिविजुअल वैल्यू से एक ज्यादा होगा. सो लेट्स से जैसे अगर ये एक्स 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 एंड एक्स है, फॉर एग्जांपल एक्स 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 एंड एक्स है, दिस हैज टू बी एक्स प्लस वन. और टोटल हमारे जो एम्प्लॉयज है वो टोटल कितने हैं? 21 है. सो 21 को तुम एक्स 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 एंड एक्स प्लस वन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 4 4 4 एंड ये क्या होगा? 5. राइट, सो 5 4 4 4 एंड 4. सो नाउ वी नो कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में हर मंथ 5 एम्प्लॉयज काम करेंगे. अब उन 5 में कितने स्पेशल स्किल्ड है, स्पेशल एम्प्लॉयज है, कितने रेगुलर एम्प्लॉयज है, दैट वी डोंट नो राइट नाउ. विल बाइफरकेट दैट, बट दैट इज द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन करना चाहिए वो क्या है? We have 5 months we are talking about, right? And T1, T2, T3, T4, T5 में फर्स्ट मंथ T1 चैलेंजिंग कर रहा है, बाकी सारे स्टैंडर्ड. नेक्स्ट मंथ में T2 चैलेंजिंग कर रहा है, बाकी सारे स्टैंडर्ड, एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मंथ. फर्स्ट मंथ का क्या हमारा बाइफर्केशन होगा? सो we'll have to make 5 tables, small tables. So first month में let's say T1, T2, T3, T4 and T5 are there. Now T1 will be doing the challenging project, ये हमें पता है, in the first month. This is actually the first month. Then अब फर्स्ट मंथ में T1, T2, T3, T4, T5 में there will be some special employees and then there will be some regular employees. Now उसका इंफॉर्मेशन हमारा सेकेंड वाले पैराग्राफ में एक्चुअली में दिया हुआ है. लेट्स रीड दैट सेकेंड पैराग्राफ. इन द फर्स्ट मंथ, दैट इज द फर्स्ट मंथ, T1 has one more SE than T2. T1 में T2 से एक ज्यादा है. T2 has one more SE than T3. T3 has one more SE than T4 and T4 has one more SE than T5. Very straightforward. Because total हमारे पांचों टीम्स मिला के टोटल नंबर ऑफ स्पेशल एम्प्लॉयज तो फिक्स्ड ही है ना, कितना? 10. तो 5 नंबर में ब्रेक करना है, सारे डिस्टिंक्ट नंबर है, जो भी ये होगा उसे +1 +1 +1 +1. So there is only one possibility. You can definitely go ahead and make simple equations for that, but straightforward है, 0 1 2 3 and 4 करके आएगा. So this is 0 1 2 3 and 4. Right, and now we can figure out the regular employees. कैसे? Because first month में T1 is that team which is actually working on the challenging project, और challenging project में हमें पता है मैं कि कितनी teams
कितने मेंबर्स, कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे, 5। सो यहाँ पे 4+1 रहा होगा तभी 5 बनेगा। बाकी इन सब में कितना आना चाहिए, 4 4 4 4। सो 3+1 इज 4, 2+2 इज 4, 1+3 is 4 and 0+4 is 4. So that is all the information about the first month, right? ये हमारा फर्स्ट मंथ का इंफॉर्मेशन आ गया। Now let's go to the second month. So we'll have to simply keep doing this. So let's talk about the second month. Exactly same चीज है, T1, T2, T3, T4 and T5. And now we know T2 would be actually working in the second month on the challenging project. ठीक है, T2 will be working on the challenging project. Now as you read further into this, तब तुम्हें समझ में आता है this part. Between two successive months the composition of the team changes as follows. So पहले मंथ में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ तक जितना इंफॉर्मेशन दिया था टिल दिस पॉइंट, ये हमारा कॉम्पोजिशन था T1 से लेकर T5 टीम्स का with respect to the number of special and regular employees. But from the second month onward, every successive month, फिर हमारा composition change होगा और उसके हमारे पास actually में कुछ rules दिए हुए हैं. So we'll have to follow those rules. Let's start reading the rules. The team allotted the challenging project gets 2 AC from the team which was allotted the challenging project in the previous month. In exchange, 1 RE shifted from the former team to the latter team. Now, कैसे shifting हो रही है हमारा? The team allotted the challenging project. तो second month में T2 would be getting the challenging project. तो इसमें अगर हम SC और RE के numbers break करें, so T2 will get what? T2 gets 2 AC from the team which was allotted the challenging project in the previous month. So T1 से 2 AC हमारे T2 में शिफ्ट हो जाएंगे. So 4 से ये क्या हो जाएगा 2 और ये 3 का क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा. पहला ये शिफ्ट हुआ, ठीक है. सो यहाँ से 2 कम हुआ और इसमें हमारा 2 बढ़ गया, तो ये 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया. And in return, in exchange, 1 RE shifted from the former team to the latter team. So former team एक हमारा T2 से एक हमारा जो RE है वो हमारा एक RE जो है T1 में शिफ्ट हो जाएगा. सो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 1 का क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. एंड फॉर द टाइम बीइंग दीज रिमेनिंग नंबर्स आर सेम, 2 2 1 3 एंड 0 4. ये हुआ पहला शिफ्टिंग के बाद. अच्छा, इसमें और भी लिखा हुआ है, देर आर टू प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, दैट इज ए पॉइंट और बी पॉइंट. बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, आफ्टर द अबव एक्सचेंज इफ T1 हैज एनी एसी, आफ्टर दिस एक्सचेंज इफ T1 हैज एनी एसी, यस, एंड T5 हैज एनी RE, yes, then one SE shifted from T1 to T5. तो T1 एंड T5 में एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे नंबर दिख रहा है और यहाँ पे नंबर दिख रहा है, सो T1 से एक SE तुम्हारा T5 में शिफ्ट हो जाएगा, राइट. एंड वन RE शिफ्टेड फ्रॉम T5 टू T1 और यहाँ से एक नंबर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो ये 2 की जगह यहाँ से एक पर्सन हमारा 5 में आएगा. सो ये 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो लेट्स डू सम रफ वर्क, यहीं पे करते हैं. सो दिस इज 2 का ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, राइट. सो दिस इज 1, दिस इज 1 एंड बदले में यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट होगा. सो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा अगेन 3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक इधर शिफ्ट हुआ, एक ये चेंज होगा. इसके अलावा भी और भी चेंजेस है अभी, लेट्स ऑल्सो रीड दैट. Then also if T2 has any AC then and T4 has any RE, वही सेम कंडीशन जो T1 एंड T5 पे चेक करी, T2 और T4 में अगर T2 में कोई हमारा AC है, ठीक है, और T4 में हमारा कोई RE है, तो फिर वही शिफ्टिंग होगा. सेम एक बार पढ़ लेते हैं. Then one AC shifted from T2 to T4 and one RE shifted from T4 to T2. So ये 5 है और यहाँ पे 3 नंबर है, दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है. सो ये 5 से हमारा नंबर एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 3 से एक नंबर हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हमारा बदले में क्या हो जाएगा 2, ठीक है. लेट्स रिमूव दिस पार्ट एंड सिमिलरली एक 3 से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2, राइट. सो ये है हमारे फाइनल नंबर्स, राइट. सो यहाँ पे is 1 3 4 1 2 2 2 2 and 1 and 3. So that is for the second month, right. So 1 3 4 1 2 2 2 2 and finally 1 and 3. So that is the numbers for the
second month. Now we'll have to repeat the same process again. We'll have to do this same thing for the थर्ड मंथ. ये हमें कितनी बार करना है अपने पास? 5 मंथ्स के लिए करना है. सो दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट. थोड़ा ध्यान से करना है बट इजी पार्ट है, डेफिनेटली इन इजी पार्ट. तो थर्ड मंथ में फिर से वही सेम T1, T2, T3, T4 एंड T5. राइट, ये हो गए. और इसके बाद हमारा, हमें पता है कि थर्ड मंथ में T3 विल बी डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. और इसमें भी कुछ हमारे एस ई और इसमें हमारे कुछ आर ई. हमारा मेन कंडीशन क्या था? द टीम अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट गेट्स 2 SE फ्रॉम द टीम विच ऑल्सो अलॉटेड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस मंथ. सो हमारा T2 से 2 SE हमारे T3 में शिफ्ट होने वाला है. और बदले में हमारा क्या होने वाला है? 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लैटर. तो T3 से हमारा एक RE जो है वो T2 में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे चेंजेस होने वाले हैं. लेट्स डू दैट. सबसे पहले विदाउट चेंजेस जो भी नंबर है वो लिख लेते हैं. सो दिस इज 1 and 3, इसमें कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं हुआ. और फिर T2 से T3, अब ये 4 में से 2 कम होगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा और यहाँ 2 बढ़ जाएगा. सो दिस विल बी 4. एंड देन यहाँ 2 में से एक निकल के इधर बढ़ेगा. सो ये हो जाएगा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1. एंड दिस इज 2 2 एंड दिस इज फिलहाल 1 and 3. देन फिर हमने दो चेंजेस हमेशा देखना है. एक T1 एंड T5 में कंपेयर करना है. सो T1 एंड T5 में, T1 में हमारा SE है और T5 में हमारा RE है. तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस क्या होते हैं? क्या बोला था? 1 SE शिफ्टेड फ्रॉम T1 टू T5. तो यहाँ 1 और यहाँ पे 3 है. सो 1 हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो इसी में कर लेते हैं. लेट्स मेक दिस 0. और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. ठीक है, एक हमारा SC क्या हुआ? यहाँ पे शिफ्ट हो गया. एंड 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम T5 टू T1. तो यहाँ 3 की जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. राइट, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट. ये हो जाएगा हमारा 4 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2. राइट, एंड देन उसके बाद हमारा चेंज किस में देखना था? T2 और T4 में. तो T2 में यहाँ पे SE भी है और T4 में हमारा RE भी है. सो फिर वही चेंजेस, 2 है 2 है तो यहाँ से एक निकल के हमारा T4 में पहुंचेगा. सो दिस वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 3. सो यहाँ से पहले 2 हटा दो. ठीक है, ये 1 and 3 हो जाएगा. एंड देन यहाँ से एक निकल के इधर पहुंचेगा. सो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो यहाँ से ये 2 रब कर देते हैं. राइट, सो 0 4 0 4 1 3 4 1 3 1 and 2 2. That is the final distribution. Right, so that is the third one. Now, I'll do the same thing for the fourth and the fifth month. I'll not waste time. I'll directly go ahead and write the numbers for the fourth month and the fifth month. Right, so I've gone ahead and written the numbers for the fourth and the fifth month as well. So that is the final distribution, right? With respect to कि किस month में हमारा किस particular team में कितने हमारे members थे, कितने composition थे, how many were SE and how many were RE. ठीक है, fourth and fifth month का information we have already done. तो fourth month में हमारा T4 would be working on the challenging project, whereas in the fifth month T5 would actually be working on the challenging project. Now, let's take a look at a few of the problems. I'll give you one problem. Let's do this for homework. So first problem karte hain. The number of times in which the composition of teams T2 and the number of times in which composition of team T4 remain unchanged in 2 successive months are. सो विल हैव टू सिंपली चेक. जैसे T2 में अगर नोटिस करो, राइट, अगर T2 में हम नोटिस करें, T2 का सक्सेसिव मंथ में नंबर सेम कहाँ कहाँ पे है? तो 3 1 है, 4 1 डिफरेंट हुआ, 4 1 3 1 डिफरेंट हुआ, 1 3 सॉरी डिफरेंट हुआ. बट 1 3 के बाद फ्रॉम द थर्ड मंथ टू द फोर्थ मंथ 1 3 एंड 1 3 वॉज सेम और उसके बाद हमारा 0 4 फिर से डिफरेंट हुआ. सो द नंबर ऑफ टाइम्स इन विच कॉम्पोजिशन ऑफ टीम T2 remains unchanged in 2 successive month. कितनी बार कंसेक्यूटिव में आपका नंबर सेम आया? एक बार, है ना. थर्ड टू फोर्थ दैट इज 1 टाइम. सो T2 में हमारा एक बार सेम रहा. दूसरा हमारा नंबर किसके लिए होना चाहिए? T4 के लिए. T4 के नंबर नोटिस करो, 1 3 2 2 3 1 5 0 4 0. इट इज चेंजिंग एवरी टाइम. सो जीरो टाइम्स आपका नंबर या कॉम्पोजिशन सेम आया. सो आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी.
द नंबर ऑफ SE इन T1 एंड T5 फॉर द प्रोजेक्ट्स इन द थर्ड मंथ आर, चेक करना है सिंपली। तो नंबर ऑफ SE T1 and T5 in third month T1 and T5 number of SE, so it has to be 0 and 2, so option A would be the correct answer. Now these were the very straightforward problems. Now third question क्या है, which of the following cannot be the total credit points earned by any employees from the projects। अब समझो क्रेडिट पॉइंट्स वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा लास्ट में दिया हुआ था इसमें, है ना। तो हमने यहाँ तक की इंफॉर्मेशन यूज करके तो ये पूरा टैबुलेट करा कॉम्पोजिशन। ना इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हैज अ टोटल ऑफ 100 क्रेडिट पॉइंट्स वाइल ईच चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज 200 क्रेडिट पॉइंट्स। सो स्टैंडर्ड में अगर हम नोटिस करें तो हमारा 100 क्रेडिट पॉइंट्स है और चैलेंजिंग में हमारा कितना है, 200 क्रेडिट पॉइंट्स है। द क्रेडिट पॉइंट्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन दैट टीम। तो क्रेडिट पॉइंट हमारा इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ इसमें मेन चीज अपने को देखो, जैसे नोटिस क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रहेगा तो अपने को पता है उस पर्टिकुलर टीम में हमेशा 4 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। तो स्टैंडर्ड के लिए आपका 100 पॉइंट्स मिलता है और वो हमारा क्या बोल रखा है उसने, द क्रेडिट पॉइंट्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन दैट टीम। सो 100 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, 4। तो स्टैंडर्ड में हर एक एम्प्लॉय को कितना मिलने वाला है आपका, 25 क्रेडिट पॉइंट्स। बट जब आपका चैलेंजिंग होगा तो टोटल आपके 200 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड चैलेंजिंग में हमेशा कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5, एंड दैट वुड गिव यू अ 40। सो कोई भी इंप्लॉय अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा तो उसको 25 पॉइंट्स मिलेगा फॉर दैट प्रोजेक्ट। एंड अगर वो चैलेंजिंग में काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 40 पॉइंट्स मिलेगा फॉर दैट प्रोजेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल क्रेडिट पॉइंट्स अर्नड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोजेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इसमें से कौन सा 140, 150, 170, 200 कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई भी अगर एक एम्प्लॉय देखोगे तो उसने 5 प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रखे होंगे, है ना। उन 5 प्रोजेक्ट में से कुछ हमारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड होंगे और कुछ हमारे क्या होंगे, चैलेंजिंग होंगे। तो बस तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो अगर स्टैंडर्ड एक्स प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड सपोज हमारे एक्स प्रोजेक्ट्स हैं और लेट से हमारे चैलेंजिंग क्या लिखे हैं, टोटल हमारे 5 प्रोजेक्ट्स है ना, तो चैलेंजिंग लेट से हमारे कितने हैं, 5 माइनस एक्स प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली टोटल पॉइंट्स इसमें से क्या नहीं हो सकता, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे हिसाब से बनेगा कितना, एक्स प्रोजेक्ट्स में 25 पॉइंट्स मिलेगा, सो इट हैज टू बी 25x प्लस 5 माइनस एक्स प्रोजेक्ट्स में कितना पॉइंट्स मिलेगा, 40 ईच। सो दैट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, और वो जो भी ऑप्शन के नंबर है उनको डिनोट करेगा। सो 25x माइनस ऑफ 40x, सो ये कितना हो जाएगा, 5 into 40, ये कितना हो जाएगा, 200। 200 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारा, 40x। 200 माइनस ऑफ क्या बन जाएगा हमारा, 40x। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी वजह से x हमारा प्रॉब्लमेटिक नंबर आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन आ जाए ऐसा कुछ। सो जैसे 200 माइनस 40x अगर 140 के बराबर है, ठीक है, 200 माइनस ऑफ, सॉरी 200 माइनस 40x प्लस 25x भी, सॉरी माय बैड, 25x भी है। सो दिस 200 माइनस ऑफ 15x, राइट। 200 माइनस ऑफ 15x, अब इसमें से एक एक करके जैसे हम अगर ऑप्शन रखें, 200 माइनस 15x अगर 140 के बराबर है, सो 15x हमारा कितना हो जाएगा, 200 माइनस 140, 60। सो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, तो पॉसिबल है ये फिलहाल, हेंस के नॉट बी द आंसर, राइट। इसको एलिमिनेट कर देंगे। 150 के साथ आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। 150 के साथ प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि 200 माइनस 150 वुड बी 50 एंड 15x इज 50, x विल टर्न आउट टू बी अ फ्रैक्शन वैल्यू। सो ये डेफिनेटली इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस बिकम्स द राइट आंसर। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन चेक करोगे x विल बी अ वैल्यू। हाँ 200 रखोगे तो x 0 आ जाएगा, बट दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है। देयर कुड बी एन एम्प्लॉय हु ऑलवेज वर्क्स इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, so that is definitely possible, and the answer to the third problem will be option B, right? And now the last problem, I'll give you a simple homework. Tell me in the comments, ठीक है, fourth problem का आंसर क्या होगा and how did you reach there, a small task for you, ठीक है। Definitely a doable set. This actually set actually came in CAT 2017 first lot. Definitely a doable set because भले ही आपका initial इसमें figure out करने में time लगे, but once you are very careful about this, this definitely is an easy part. Plus minus आपको करते चलना है,
and we can definitely go for these type of problems in the exam, right? So let me know the answers to the fourth problem in the comments. Let's see how much understanding you develop out of this particular set. And I hope you understood this. If you have any doubts, you can also put that in the comments. Thank you.